بیٹا پلیز خاموش ہو جائیں، شور شرابہ نہیں۔ ویسے اگر آپ شور کرتے بھی رہیں گے تو یہ مائک میں نے ایسے نہیں لیا، یہ صرف میری آواز کیچ کرتا ہے، آپ کی نہیں کرتا۔ تو بیٹے یہ ہم نے پڑھا تھا پہلا صفحہ، تو دوسرے صفحے سے ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ کل بیٹا آپ نے اس سبق کا خلاصہ کر کے آنا ہے۔ ابوالقاسم زہراوی کا خلاصہ کل کر کے آئیں گے آپ۔ ابوالقاسم زہراوی سرجری میں جو نادر آپریشن انجام دیتا تھا، نادر کا مطلب انوکھے، ہاں چلا لیں حاضری والا کام۔ ابوالقاسم زہراوی سرجری میں جو نادر آپریشن انجام دیتا تھا، اپنے روز افزوں تجربے سے، روز افزوں کا مطلب روز بڑھتے ہوئے تجربے سے اس فن میں جو نئی نئی راہیں دریافت کرتا تھا، آپریشن کرنے کے لیے اپنی نگرانی میں جو نئے نئے آلات بنواتا تھا، ان سب کی تفصیل وہ احاطۂ قلم میں لاتا جاتا تھا۔ احاطۂ قلم کا مطلب کیا ہے؟ تحریر میں، یہاں تک کہ اس کے قلم سے عملی سرجری پر ایک یگانہ روزگار تصنیف ظہور میں آ گئی۔ یگانہ روزگار کا مطلب تمام دنیا میں منفرد، انوکھی، سب سے ہٹ کے یگانہ روزگار تصنیف ظہور میں آ گئی، جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی۔ داخل درس کا مطلب پڑھائی جاتی رہی۔ زہراوی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے۔ یہ پوری کتاب تو علم علاج کی دونوں شاخوں، طب یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی سرجری پر مشتمل ہے، لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طب یعنی میڈیسن پر تو عربی میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، لیکن جراحت یعنی سرجری پر اعلیٰ معیار کی پہلی مفصل کتاب، مفصل کا مطلب تفصیل سے لکھی گئی۔ تصریف کا ذکر آتا ہے تو اس سے تصریف یعنی سرجری کی کتاب ہی مراد ہوتی ہے۔ تصریف 3 بڑے حصوں میں منقسم ہے۔ منقسم کا مطلب تقسیم، ڈیوائیڈڈ۔ اس کا پہلا حصہ داغ دینے کے متعلق ہے۔ بیٹا جی داغ دینا، یہ زخم یا کسی بھی چیز کو گرم لوہے کے ساتھ داغنا، یہ بھی ٹریٹمنٹ ہوتا تھا پرانے دور میں۔ کسی کو زہریلا کیڑا کاٹ جائے یا کوئی زخم پرانا ہو، ٹھیک نہ ہو رہا ہو، تو اس کو وہ داغ دیتے تھے، لوہا گرم کر کے اوپر لگاتے تھے۔ تو یہ جو پہلے حصے میں ہے داغ دینے کے متعلق ہے، جو ازمینہ وسطیٰ، ازمینہ وسطیٰ کا مطلب درمیانی زمانہ 14ویں 15ویں صدی، ازمنہ وسطیٰ تک بعض امراض کے علاج میں برتا جاتا تھا۔ تصریف کے دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے، یہی اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں۔ ان میں دانت نکالنے، آنکھوں کا آپریشن کرنے، حلق کا کوا کاٹنے، یہ حلق کا جو گوشت لٹک جاتا ہے نیچے، مثانے میں سے پتھری نکالنے، بواسیر کے مسوں کو کاٹنے، خنازیر کا آپریشن کرنے، خنازیر یہ گلے جو پھولے ہوتے ہیں، ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے، اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانے، معوف عضو کو کاٹنے۔ معوف عضو کا مطلب خراب عضو جو ہے، جسم کا کوئی حصہ کام کرنے سے رہ جائے تو اسے کاٹ دیتے ہیں۔ معوف عضو کو کاٹنے اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات دی گئی ہیں، بتایا گیا ہے بڑی تفصیل سے ہر قسم کے پھوڑوں کو چیر کے بھی۔ مختصر یہ کہ جراحت میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو سابقہ پڑتا ہے، ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصنیف میں چھوٹ نہیں گئی، یعنی رہی نہیں ہے۔ ان اعمال جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے کی گئی ہے۔ ان آلات میں کاساتیر یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ، کیسٹر کہتے ہیں اس کو، مقامہ الاسنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ، محقن یعنی انیما کرنے کا آلہ۔ انیما جب پیٹ میں سدے پڑ جاتے ہیں، پخانہ نہیں آتا، بہت تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو محقن یا انیما کہتے ہیں۔ مختلف قسم کے نشتر، کینچی، آری، سرجنوں کی سلائی، زخموں کے سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں سبھی شامل ہیں۔ ان میں سے ہر آلے کی ساخت تصویر کی مدد سے اور طریقے استعمال الفاظ کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ تصریف سے پہلے جراحی پر نہ اتنے پائے کی اتنے معیار کی کوئی کتاب لکھی گئی تھی، نہ علم جراحت کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھیں۔ یعنی ایسی تصویر جو ہے، ایسی کتاب
पहले जराहत पर नहीं लिखी गई। तशरीफ़ की नुमायाँ खसूसियात में फ़ाज़िल मुसन्निफ़ ने इसमें जाबजा अपने तजुर्बात की रोशनी में सर्जरी के मुताल्लिक़ ऐसी तसरीहात की हैं, तसरीहात का मतलब वजाहतें, जिनसे तिब्बी दुनिया इससे पहले बेखबर थी। ज़ोहरावी का तर्ज बयान आम फहम और ज़ुबान सादा है। आम फहम, आम लोगों की समझ में आने वाली। वो जिस मौजू पर कलम उठाता है उसके तमाम रमूज़ इस खूबी से बयान करता है कि कारी के लिए किसी किस्म का उलझाव बाकी नहीं रहता। उलझाव का मतलब परेशानी। फिर बाज़ दीगर तिब्बी मुसन्फ़ों की तरह वो फ़लसफ़ियाना मूशगाफियों में नहीं उलझा। मूशगाफियाँ बाल के खाल उतारना, यानी बारीक बारीक बातों में नहीं उलझा, टू दी पॉइंट उसने बात की है, बल्कि अपने फ़न के अमली पहलुओं को सामने रखता है और सिर्फ उन्हीं अमूर की तौज़ीह करना ज़रूरी ख्याल करता है। तौज़ीह का मतलब वज़ाहत, जो अमली अफादियत के हामिल हों। अहले मगरब जो मुसलमानों के नामों को बिगाड़ने में ख़ास महारत रखते हैं, अबुल कासिम ज़ोहरावी को अबुल कासिस, अल्बोकासिस और ज़ोहरावीस के नामों से याद करते हैं, यानी उसका सही नाम नहीं बताते। तो अबुल कासिम कहें तो पता लगेगा मुसलमान होगा, इसलिए उसको अल्बोकासिस, अबुल कासिस और ज़ोहरावीस यानी उसका नाम। जैसे इब्नुल हैशम को वो अल-हैज़ान कहते हैं, इब्नुल हैशम अल-हैज़न। यूरोप में अज़मना वुस्ता से लेकर 18वीं सदी तक के तमाम मगरबी मुसन्निफ़ जिन्होंने सर्जरी पर किताबें लिखी हैं, अबुल कासिम ज़ोहरावी की फ़नी काबिलियत के मोतरफ़ हैं, यानी वो मानते हैं, एतराफ़ करते हैं, उसको तस्लीम करते हैं कि अबुल कासिम ज़ोहरावी बड़ा फ़नकार था और जाबजा उसकी किताब से हवाले देते हैं। इनमें से बाज़ ने तो साफ तौर पर इस अमर का इजहार किया है कि फ़न जराहत में ज़ोहरावी एक उस्ताद कामिल की हैसियत रखता है, यानी जराहत में माहिर उस्ताद है वो। और अहले यूरोप ने इब्तदाई सर्जरी में जो कुछ हासिल किया है वो सिर्फ ज़ोहरावी ही की बदौलत है। ज़ोहरावी की किताब तशरीफ़ सदियों तक यूरोप की तमाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में दाखिले दर्स रही और मगरब के सर्जन इस किताब के मुंदरजात को सनद के तौर पर पेश करते रहे। मुंदरजात, इसमें जो कुछ दर्ज था, इसमें जो कुछ लिखा हुआ था, उसे सनद के तौर पर पेश करते रहे, बताते रहे कि ये एक सनद है, एक रिकॉर्ड है। तशरीफ़ का लातीनी तर्जमा, लातीनी कदीम यूरोप की एक ज़ुबान थी। तशरीफ़ का लातीनी तर्जमा सबसे पहले वीनस से 1497 में शाया हुआ। 1497, 1497। इसके बाद इसका लातीनी एडिशन, जिसमें अरबी किताब की असल तस्वीरें भी नहायत आबोताब से छापी गई थीं, आबोताब चमक दमक के साथ, 1541 में बासल में तबाह हुआ। बासल एडिशन की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसमें असल अरबी किताब और उसका लातीनी तर्जमा दोनों ही एक जिल्द में शामिल थे, दोनों एक ही जिल्द में शामिल थे। यूरोप में इस किताब की मकबूलियत 19वीं सदी के आखिर तक भी बाकी थी। चुनाचे एक फ्रांसीसी डॉक्टर लीकार्क ने 1881 में अत-तशरीफ़ को फ्रांसीसी ज़ुबान में मुंतकिल किया और दिबाचे में इस किताब को सर्जरी का एक नादिर शाहकार करार दिया। यानी स्टार्ट में जो उसने तारुफ लिखा इसका, उसमें बताया कि ये सर्जरी का एक नादिर शाहकार है। यूरोप के फुजला ने, फुजला फाजिल की जमा फुजला यानी उलमा ने अत-तशरीफ़ को महज अपनी ज़ुबान में मुंतकिल करने पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि इनमें से बाज़ ने इस किताब पर शरह भी लिखी, यानी इस किताब की तशरीहात भी की। तो अत-तशरीफ़ किताब से अहले यूरोप ने सर्जरी का इल्म हासिल किया और उसको आगे बढ़ाया, क्योंकि अबुल कासिम ज़ोहरावी के दौर में जो सर्जरी होती थी उसमें दो मसाइल थे बहुत बड़े। एक तो इन्फेक्शन का मसला कि जब काटेंगे तो वो जगह जरासीम से मुतासर होगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, और दूसरा उससे बंदे को तकलीफ़ बहुत होती है जब उसकी कटाई होगी। तो तकलीफ़ का इलाज बेहोश करके और इन्फेक्शन का इलाज जो है एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक से, यानी अबुल कासिम ज़ोहरावी की टेक्निक को और आगे बढ़ाया गया, यानी जो उसमें खामियां थीं वो दूर कर दी गई। यानी उसके लिए तकलीफ़ के लिए बेहोशी, यानी बेहोश कर देते हैं ना। दो टाइप का एनेस्थीसिया होता है, एक लोकल होता है, एक जनरल होता है। लोकल में सिर्फ उस जगह को सुन करते हैं और जनरल में पूरा बंदा ही बेहोश कर देते हैं, चल भाई। इसके बाद उसका जो है वो काम करते हैं सर्जरी वाला। तो मेरे बच्चों, ये काम जो सर्जरी वाला प्रोग्राम है ये ऐसे ही होता है। तो इसमें
एंटीसेप्टिक्स जो है जिल्द को ऊपर से सेट करते हैं जख्म को, और एंटीबायोटिक्स जो है वो खाने के ज़रिए या इंजेक्शन के ज़रिए जाते हैं और वो अंदर से इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। और बेहोश करने का जो तरीका, उसके ज़रिए सर्जरी वाला काम जो है बहुत आसान हो गया। तो इस हवाले से कोई सवाल आपके जहन में आता है तो काइंडली कर सकते हैं आप, उसका मैं आपको जवाब देता हूँ, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा, कोई सवाल, कोई बात किसी के जहन में आती है तो पूछ लें। जी बुक अभी भी मौजूद है, नेट पे आप सर्च करें मिल जाएगी। और तशरीफ लिख के सर्च कराएं, नेट पे आपको PDF में किताब मिल जाएगी। लेकिन ये अरबिक में है, उर्दू में नहीं है। अगर अरबिक पढ़ सकते हैं आप तो ये किताब मिल जाएगी आपको। मैंने डाउनलोड की थी और वो उसमें तस्वीरें भी बनी हुई हैं और सारा कुछ है उसके अंदर, लेकिन अरबिक में है वो। नहीं, लाइब्रेरी में नहीं है, इस लाइब्रेरी में नहीं है हमारे पास। देखें बेटा, बड़ी लाइब्रेरीज में तो ज़रूर होगी, लेकिन हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में ये किताब मौजूद नहीं है। लेकिन नेट पे ये मौजूद है, आप गूगल पे अगर सर्च कराएंगे और तशरीफ PDF लिख के तो आपको ये किताब मिल जाएगी। लेकिन इसको पढ़ने के लिए अरबिक का जानना ज़रूरी है। और कोई सवाल? चलो नहीं तो ना सही, हम फिर आगे चलते हैं।